Good evening, students. Today we will be discussing very interesting topic of class 10, that is magnetic field due to a current in a solenoid. So dear student, first see the definition of solenoid. So solenoid is a coil of large number of turns of insulated copper wire wrapped closely in the form of in the shape of a cylinder. Wrapped closely in the shape of a cylinder means आपने पहले पढ़ा कि current flowing through a wire that behave as a magnet. Now what we are going to do, we are wrapping this insulated copper wire on any object, cylindrical object, and when current is passed to this wire, insulated copper wire, then this will behave as a solenoid. Means कि इसका एक एंड नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा एंड साउथ बन जाएगा और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे. सो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि जनरली द लेंथ ऑफ ए सोलिनॉइड इज मच ग्रेटर देन कंपेयर टू इट्स डायमीटर. मींस जो आपने यहां पे लाइन पढ़ी, जनरली द लेंथ ऑफ ए सोलिनॉइड इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर. मींस ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ, ये जो है दैट शुड बी दिस शुड बी ग्रेटर देन द इट्स डायमीटर. ठीक है, डायमीटर से ये टोटल, जैसे मान लो ये इसका एक सर्कुलर वायर है तो इसकी टोटल लेंथ जो है इसके डायमीटर से ज्यादा है. ठीक है, डायमीटर ये हुआ यहां से लेके यहां तक, लेकिन इसकी टोटल लेंथ इज मोर देन दिस डायमीटर. सो दिस इज वेरी मेन पॉइंट. सो लेट अस टेक दिस ऑब्जेक्ट, cylindrical object, and wrapped large number of insulating copper wire over this, connected to a battery, and this when this connected to ammeter, rheostat means variable resistance, and one way key. So this is one way key, this is battery. Okay, this is rheostat, we can write with RH, and this is ammeter, it's positive and negative end. So when this key is pressed, current will start moving from one end and it will pass to this, we can say pass to these copper wires wrapped on this cylindrical object, and this solenoid will start behaving like a magnet. So magnetic field lines will produce through this solenoid. Let's see how the magnetic lines will produced. So let us make one more diagram. This is we can say solenoid means large number of turns are wrapped, then current is moving like from this end. Okay, so it is connected to a battery, then it is connected to one way key, again it is connected to a rheostat, variable rheostat, and at last it is connected to a ammeter, and ammeter is connected to rheostat. So what will happen when current is passed from this end, from A end to B end, then we can say if current is moving from this direction, you can see the direction of, because always current moving from higher potential to lower potential. When it is moving from higher potential to lower potential, then you see the direction of the current. So current direction is clockwise, and if somebody will observe from this side, अगर कोई आदमी यहां से ऑब्जर्व करेगा तो इसको ये साउथ दिखेगा, क्योंकि अभी रूल पीछे भी पढ़ा था हमने, अभी भी पढ़ेंगे कि अगर करंट क्लॉकवाइज चले तो वो एंड साउथ होगा और दूसरा एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा. अगर मैं पोलैरिटी चेंज करता हूं तो देखिए अब करंट इस तरफ से मूव करेगा तो करंट यहां से एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ होगा और वो साउथ होगा. ठीक है, तो when current is passed to the solenoid, then we can say one end become north and second end become south. See, magnetic field lines will produced here. So let me tell you how the magnetic field lines will produce. When a current will pass, then what will happen? This solenoid will start behaving like a magnet. So magnetic field lines will originate from this north pole and they will meet at south pole. Normally they will come from this surface, this area, and normally they will enter from this side. Let us, this is south and this is north.
already I have written here north. So magnetic field lines will start coming from north pole to south pole. Actually magnetic field lines are moving to this direction, but due to the attraction of the south pole, opposite pole, all the lines will come to south end and take care of the arrows. Arrows will be from north to south. ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए आप दोबारा से, कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी तो आपको एरो जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रखना है. बाहर जो है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ. तो यहां पे एक लूप बन गया, यहां पे एक लूप बन गया. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ में एंड होगी, ऐसे करके एक लूप बन गया. इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ में आती हैं बाहर की साइड, और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं. दे बोथ हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर साउथ नहीं होता तो नॉर्थ पोल लाइंस कहां जाती. इसका मतलब नॉर्थ से लाइन चली और साउथ में एंटर किया, और साउथ से लाइन एंटर की और नॉर्थ में पहुंच गई. तो यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी. यू विल गेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी आपको इसके सेंटर में. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू विल गेट यूनिफॉर्म. और जैसे जैसे बाहर की तरफ चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कम होती चलेगी. मींस कि एंड पे ये थोड़ा कम हो जाएगी, यहां और यहां की मिला के बीच में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. तो यहां पे इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप देखिए क्या हुआ है सर. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी वाली लाइन यहां से ओरिजिनेट हुई और इट इज कमिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल. सिमिलरली lines will come from this north pole and they will meet at south pole. No lines will intersect. अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब there will be two tangents at this particular points. Let me tell you. सपोज करिए आप बोलते हो कि ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा. सपोज करिए एक लाइन ऐसे जा रही है नॉर्थ से मान लीजिए, और दूसरी लाइन भी यहां से ओरिजिनेट हुई और वो इंटरसेक्ट कर गई. अब जब वो इंटरसेक्ट कर गई तो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया. एट पॉइंट पी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर ये इंटरसेक्ट कर गई देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहां पे टू टेंजेंट्स बनेंगे. एक टेंजेंट ये बन गया, टेंजेंट टू द सर्कल. ये देखिए इस पॉइंट में एक टेंजेंट ये बन गया, एक टेंजेंट ये बन गया. It means there will be two direction at this particular point, and which is not possible. Now the question, many students are asking that why the two field lines do not intersect. They do not intersect because they exert pressure on each other. Because north pole having magnetic field lines, south pole having also magnetic field lines. The north pole magnetic field lines are attracted by the south. Okay. But what will happen? They will go parallel and they will not intersect. At this particular point they will emerge out normally. यहां पे वो normally बाहर निकलेंगी, यहां से बाहर से या इस पॉइंट के ऊपर से normally निकलने की कोशिश करेंगी, लेकिन due to the attraction of the south pole they will meet at this particular point. इस पॉइंट में मिल जाएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पे मिल जाएंगे और यहां भी नॉर्मली एंटर करेंगी, यहां भी नॉर्मली एंटर करेंगी और यहां भी नॉर्मली टू द सरफेस एंटर करेंगे. इस पॉइंट के ऊपर स्पेशली इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी यूनिफॉर्म होंगी, वो इक्वल डिस्टेंस होगा, पर एजेस पे वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी. तो अब आप देखिए हमने क्या किया. यहां पे मैं इसको आपको दोबारा से एक बार डिक्टेट करता हूं कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया मैंने, एज द करंट
in each circular loop of a solenoid coil flows in the same direction, the magnetic fields of all the coils are added up, and as a result the magnetic field inside the solenoid becomes a strong field. The field pattern of a solenoid is similar to the field pattern around a bar magnet. जैसे आपका बार मैग्नेट था, जो आपने देखा होगा, जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट आपका नॉर्थ साउथ, जो एक्चुअल में बार मींस की लाइक दिस शेप, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शेप का, तो ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वैसे ही ये काम करेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वन एंड विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड सेकेंड एंड विल बिहेव एज ए वन इज साउथ। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं वायर को इस तरीके से रैप कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वायर, ये देखिए वायर को इस तरीके से देखिए, तो मैं अपने हैंड को ऐसे रखूंगा, राइट हैंड थंब रूल इसमें यूज होगा, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो इस वायर को जब आप ऐसे पकड़ोगे तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है मींस करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ पोल। देखिए आप, अगर करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, तो वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब वो एंड जो है साउथ पोल बनेगा। मींस कि करंट इस डायरेक्शन में आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, तो ये साउथ पोल बनेगा। ध्यान से देख लो, अगर मैं अपने वायर हाथ को ऐसे पकड़ूं, वायर दीज आर द वायर्स, तो ये आपके पास करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो यहां से ऐसे जा रहा है, ये वायर है आपके पास, ऐसे पकड़ा मैंने, तो ये करंट इस वायर में जा रहा है। और ऐसे अपने हाथ को रैप कर दो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दीज फिंगर्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप, दैट बिकम्स ए नॉर्थ पोल, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, साउथ पोल। सो नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले कि पहला फैक्टर जो है कि अगर जितना हम करंट पास करेंगे, जितना हम यहाँ से करंट पास करेंगे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आई मीन इसके ऊपर जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, मीन्स अगर यहाँ पे 10 हैं तो हमने 20 कर दिए, 20 हैं तो 30 कर दिए, तो जितने ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड फिर से इंक्रीज करेगी। जैसे मीन्स पहला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मोर द करंट मोर द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा हैं तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तीसरा फैक्टर कि अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन या स्टील इंसर्ट कर दें सोलिनॉइड के बीच में, जैसे ये अब मैंने यहाँ पे सोलिनॉइड के बीच में क्या किया, सॉफ्ट आयरन के ऊपर रैप कर दिया, या यू कैन से स्टील ले लिया, ओके। तो उसमें करंट जब पास किया फिर से बैटरी से, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। स्ट्रॉन्ग करंट इज पास, देन इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स करंट पास करने से जो मैग्नेट बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मैग्नेट। उसके बाद है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द सोलिनॉइड, कि सोलिनॉइड की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स लाइक करंट, नंबर ऑफ टर्न्स। सो दीज आर द फैक्टर थ्रू विच स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। आप इस डायग्राम से एक बार फिर देख सकते हैं कि अगर करंट, ये देखिए, अगर करंट एंड क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो आपको एस लिखना है, वहां पे साउथ लिखना है। जैसे करंट मान लो यहां से पास हो रहा है, तो करंट देखो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, यहां से इस तरफ ऐसे जाएगा ये, तो वहां से जो आदमी देखेगा उसको साउथ दिखेगा ये। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज,
अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, देखो तो आपको एन लिखना है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे करके, याद रखने के लिए। तो वो एंड जो है आपके पास नॉर्थ बनेगा। जैसे करंट यहां से जा रहा है सपोज करिए, तो जो आदमी यहां से देखेगा उसको नॉर्थ दिखेगा, और जो आदमी यहां से देखेगा और करंट यहां से आ रहा है उसको वो साउथ दिखेगा, क्योंकि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। और इस डायरेक्शन से जो आदमी देखेगा, और करंट, इसकी पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी बैटरी की, तो करंट मान लो इस तरफ से आ रहा है, तो ये देखो ये डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। और जो आदमी इधर से देखेगा उसके लिए डायरेक्शन क्या हुई, साउथ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। सो दिस वाज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड टू करंट इन अ सोलिनॉइड।